Hello students, in previous part we have studied about the oxidation of aldehyde, and at that time I told you oxidation of ketone is very difficult. It's not so easy task, but by using the strong oxidizing agent like KMnO4, concentrated HNO3 or K2Cr2O7, we can go for the oxidation of ketone. In the previous video we have studied how to identify the aldehyde or ketone compound if it is given in the lab for the practical exam. So how to identify whether the given compound is aldehyde or ketone, that will be found by tolerance test, and in that tolerance test फ्रेशली प्रिपेयर्ड एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का हम सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें से सिल्वर मिरर टेस्ट is given by only the aldehyde. Ketone is not going to give this test, so we can identify whether the given compound is aldehyde or a ketone by the tolerance test. But yes student, along with that, if the given compound is aliphatic aldehyde or aromatic aldehyde, that can be also identified by giving the test for phthalate A and phthalate B solution. We have taken that phthalate A solution as a freshly prepared copper sulfate, and phthalate B solution is sodium potassium tartrate. So from this, the given compound is aliphatic aldehyde that can be identified. So this all we have studied in the previous video. Students, if you are not clear about that, you can see watch my that previous video and clear your doubts. In the today's video, I Kinnari Dave of standard 12 of unit 12 part 8 is going to explain you about the oxidation of ketone by strong oxidizing agent. So let us start today's topic with Kinnari teacher, part 8, standard 12, unit 12, aldehyde, ketone and carboxylic acid. Now as I said, it is very difficult to go for the oxidation. So here we are going to take the strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent like KMnO4, or we can take as a K2Cr2O7 plus H2SO4, potassium dichromate plus H2SO4, and the same way we can go for the concentrated HNO3 also. So here also KMnO4 के साथ में भी यहाँ पर हमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना जरूरी है, otherwise KMnO4 is a good oxidizing agent that we know. So these are the strong oxidizing agent we can help us to oxidation of the ketone. Now here we will take the example of symmetrical carbon aldehyde ketone and unsymmetrical ketone also. So we are going to take the example first of the symmetrical ketone with the concentrated HNO3. So here I am going to take the example of CH3, C double bond O, CH3 by using concentrated HNO3. Now as you know student, we have to go for the oxidation. So oxidation हमें करना है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमें जो हमारे पास में हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव करना है. So now first of all what happens here, the double bond is there. From that double bond here we are going to get the product, that is the intermediate, and then further we are going to go for the further oxidation, we'll get the final product. So here CH3, C double bond O, OH, here you get that acetic acid, here it is your acetic acid. Now acetic acid is along with that acetic acid we get the another product also, means here the bond breaks, either you can go for the bond break from this side
or either from left side. Means two sides the bond can be break. Cleavage of bond is possible either from this side or either from this side. So first of all, I have just shown you that cleavage of bond by, here we have the alpha carbon on both the side. This is also our alpha carbon and this is also our alpha carbon. So the cleavage of bond takes place by this way. So here you have CH3, C double bond O and OH. So this is your acetic acid. Now this portion you get formic acid H, C double O H. This is our another product. So this way cleavage occurs and we get the two product. Now student, here it is a symmetry ketone, so there is not an issue. आप कोई भी टाइप से बॉन्ड को ब्रेक करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. पर जब अनसिमेट्री कीटोन होता है तो अनसिमेट्री कीटोन में हमें ये देखना जरूरी होता है कि क्लेवेज ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस फ्रॉम विच साइड और विच इज द मेन प्रोडक्ट विल गेट, or for that which rules is to be followed for cleavage of bond for the alpha carbon. So let us take one example for unsymmetric ketone and we'll try to identify. So if the product contain more than, अब यहाँ पर ये एक देखना है स्टूडेंट, यहाँ आपके पास में प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट में अगर मोर देन वन कार्बन प्रेजेंट है तो मोर देन वन कार्बन प्रेजेंट का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, बराबर है. तो यहाँ एक बात ये ध्यान में रखनी है कि आपके पास में जो प्रोडक्ट है, इफ द प्रोडक्ट कंटेन मोर देन वन कार्बन then further oxidation is not possible, but if it is having the one carbon then further oxidation is possible. तो ये यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये फॉर्मिक एसिड है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन है, इसकी वजह से यहाँ उसके आगे फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है. और फर्दर ऑक्सीडेशन जब फॉर्मिक एसिड का होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से हमारे पास में जो है वो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस ये CO2 होगा प्लस CO2 एंड प्लस वाटर. सो ये बात यहाँ ध्यान में रखनी है हमें कि इफ प्रोडक्ट कंटेन मोर देन वन कार्बन, मतलब यहाँ पर ये जो आपको एसिटिक एसिड मिला है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, पर जब आपको फॉर्मिक एसिड मिला है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन है इसीलिए यहाँ उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है. तो यहाँ हमें इसी तरह से प्रोडक्ट जो है वो मिलती है. तो यहाँ हमारी प्रोडक्ट होगी एसिटिक एसिड. फॉर्मिक एसिड में से हमें मिलेगा एसिटिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2O. तो ये रूल आप ध्यान में रखोगे. If one carbon is present in the product by oxidation of ketone, then further oxidation is possible and we'll get the final product. Now we'll take the unsymmetric ketone. As I said कि अगर unsymmetric ketone है तो कौन सी साइड से बॉन्ड को ब्रेक करना है, हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, तो वो हम देखते हैं. अब यहाँ लेते हैं हम प्रोपेन लेते हैं ताकि हमारे पास में अलग अलग ब्रेकेज हो सकता है. सो प्रोपेन नहीं लेते, पेंटेन लेते हैं क्योंकि प्रोपेन तो ऑलरेडी हमने ले लिया है. तो C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, CH3. तो अब यहाँ हमने लिया है पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन. तो ये हमारा है रिएजेंट कीटोन का और उसका रिएक्शन हम करते हैं. अब यहाँ पर लेते हैं KMnO4 प्लस H2SO4. अब देखना ये है कि बॉन्ड ब्रेकेज कौन सी बाजू से होगा, कौन सी मेन प्रोडक्ट होगी. तो एक आपके पास में बॉन्ड ब्रेकेज ये हो सकता है स्टूडेंट जहां पर कार्बोनिल कार्बन के पास में लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन जुड़ा हुआ है.
तो एक बॉन्ड ब्रेकेज इस तरह से होता है, और अगर आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हो तो कार्बोनिल कार्बन के पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जुड़े हुए होते हैं। तो अब यहाँ हमें ये देखना है कि कौन सा रूल फॉलो करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो मेन प्रोडक्ट मिलेगी। तो वो रूल को हम कहते हैं पॉप-ऑफ रूल। सो पॉप-ऑफ रूल के अंदर जो क्लेवेज होता है उसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ में जो भी क्लेवेज होगा वो लिस्ट नंबर कार्बन के साथ में जुड़ा होगा। दैट इज अवर मेन प्रोडक्ट। मीन्स पॉप-ऑफ रूल सेज दैट द cleavage of bond takes place with that carbonyl carbon attached with the least number of carbon। तो यहाँ पर ये जो है हमारा ये एक प्रोडक्ट बनेगी और यहाँ से ये जो है वो अनदर प्रोडक्ट बनेगी, वो हमारी मेन प्रोडक्ट होगी स्टूडेंट। तो यहाँ भी हमें प्रोडक्ट तो दो मिलती है, मेन के साथ में हमारी दूसरी प्रोडक्ट भी मिलती है। तो यहाँ मेन प्रोडक्ट के लिए हम पहले करते हैं यहाँ CH3 COOH, मतलब ये एक CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ इसके साथ में OH लगेगा। तो ये हुआ हमारा एसिटिक एसिड। और दूसरा यहाँ जो आपके पास में जो प्रोपेन पड़ा है उसके साथ में आपके पास में जो लगेगा वो CH2 और यहाँ पर आपके पास में है COOH। तो प्लस यहाँ से शुरू करते हैं CH3 CH2 और ये जो आपका है वो है आपका C डबल बॉन्ड OH। तो ये CH3 CH2 और यहाँ आपके पास में लगा COOH। तो ये हुई आपकी मेन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द पॉप-ऑफ रूल। पॉप-ऑफ रूल में क्या बताया है कि कार्बोनिल कार्बन जो है उसके बाजू में बॉन्ड का ब्रेकेज इस तरह से होगा कि कार्बोनिल कार्बन लिस्ट नंबर ऑफ कार्बन के साथ में जुड़ेगा। सो दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट। अब उससे उल्टा आप देखो कि अगर आप क्लेवेज ऑफ बॉन्ड यहां से करते हो, मतलब ये आपका ये सब्स्टिट्यूट मिलेगा, मतलब कि ये जो है वो प्रोडक्ट जो मिलेगी वो प्रोडक्ट हमारी गौण होगी, वो कम प्रपोर्शन में होगी। तो यहाँ पर आपके पास में ये जो आपने बॉन्ड ब्रेकेज किया उसमें यहाँ सिर्फ आपके पास में CH3 है, तो यहाँ आप लगाओगे CH3, ये आपका उसके साथ में यहाँ CH2 और ये जो है वो आपका होगा COOH। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और प्लस अब जो यहाँ बचा है आपके पास में सिर्फ, तो ये हुआ आपका फॉर्मिक एसिड प्लस HCOOH। और जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि फॉर्मिक एसिड के अंदर सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ हम आगे उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, पर ये हमारी मेन प्रोडक्ट नहीं है। दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट विद फॉलो ऑफ द पॉप-ऑफ रूल। सो ये ब्रेकेज जो है वो यहाँ से जो होगा वो हमें फॉलो करना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं पॉप-ऑफ रूल। नाउ इसके बाद में कीटोन का ऑक्सीडेशन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट है वो टेस्ट हम उसको हॉफमैन टेस्ट भी कहते हैं, सॉरी स्टूडेंट, हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो अपना एग्जाम के अंदर मतलब लैब के अंदर भी ये इम्पॉर्टेंट है, और कभी कभी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए मतलब इसी तरह से भी पूछा जाता है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या है या तो हेलोफॉर्म टेस्ट क्या है, वो आप डिस्क्राइब करो। ये हमारा लैब में वाइवा का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो जनरली यूजफुल फॉर दैट कंपाउंड विच इज हैविंग द ग्रुप CH3COO, मतलब कि कार्बोनिल कार्बन के बाजू में कोई भी एक साइड में मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है। तो ये है हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन, सो यहाँ क्या होना चाहिए,
आपका जो कार्बोनिल कार्बन है उसके कोई भी एक बाजू में मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी है. सो दिस इज द ग्रुप विच इज कंसिडर एज अ मिथाइल ग्रुप अलोंग विद द कार्बोनिल कार्बन, आइदर राइट साइड में हो या आइदर लेफ्ट साइड में हो, तो उसे हम कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन. और लैब के अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया कि हम अगर गिवन सब्सटेंस जो है वो कीटोन है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो लेट अस स्टार्ट विद द हेलोफॉर्म रिएक्शन. Here we are going to take the one is aromatic ketone भी हम लेते हैं. तो यहाँ हम ले रहे हैं हमारा एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. जैसे मैंने बताया कार्बोनिल कार्बन के एक बाजू में CH3 का होना जरूरी है. तो यहाँ दोनों बाजू है तो हम कोई भी एक साइड को कंसिडर कर सकते हैं. तो ये हमने यहाँ कंसिडर किया है. तो उसके साथ में अब यहाँ हमें लेना है साथ में NaOH प्लस X2, मतलब X यहाँ पर हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसी भी तरह हेलोफॉर्म को ले सकते हैं. तो अगर यहाँ आयोडीन लिया है तो वो टेस्ट को हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं. तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो मैंने आपको बताया उस तरह से. तो सपोज यहाँ पर कौन कौन से कंपाउंड के लिए यूजफुल है. तो सपोज आपके पास में तो ये C डबल बॉन्ड O CH3, सो ये भी आप हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है. उसके अलावा अगर हम सोचते हैं दूसरा सब्सटेंस कंपाउंड तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये भी आप देख सकते हो. यहाँ कार्बोनिल कार्बन के एक बाजू में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ये भी आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है. तो एग्जाम में इस तरह का MCQ भी पूछा जा सकता है कि इसमें से गिवन जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है. तो ये आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो यहाँ हमने लिया है हमारा कीटोन के साथ में NaOH और X2 लेते हैं. तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा C डबल बॉन्ड O उसके साथ में O सोडियम लग जाता है. तो सोडियम आयन बनता है यहाँ पर. तो यहाँ हमारे पास में है सोडियम इथेनोइड आयन बनेगा. ये CH3 है, यहाँ CH3 के साथ में आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ जो है उसमें से माइनस H2O. तो ये तो यहाँ आपके पास में जो है वहां पर आपको C डबल बॉन्ड O माइनस एंड Na प्लस. तो इस तरह से हमारे पास में सोडियम इथेनोएट बनता है. और वो सोडियम इथेनोएट जो है वो हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन में अब जो बाकी बचा, यहाँ अगर आपने I2 लिया आयोडीन लिया है तो यहाँ आपका रिएक्शन में आयोडीन रहेगा. क्लोरीन लिया है तो आपके पास में क्लोरीन रहेगा. तो सपोज हम यहाँ पर क्लोरीन ले रहे हैं तो CHCl3. तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्लोरोफॉर्म मिलेगा. या तो आयोडीन लिया है तो हमें वहाँ आयोडीन मिलेगा. तो ये हम प्रोडक्ट कर सकते हैं CH और यहाँ हमारे पास में X रखते हैं तो X3, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगी. इसीलिए इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन कहा जाता है. तो ये रिएक्शन में मिथाइल ग्रुप जो है वो नेक्स्ट टू कार्बोनिल कार्ब जो है, इसीलिए चेंज कोई चेन में नहीं होता है. यहाँ पर बॉन्ड हमें बाकी की जो कोई भी चेंज है, जैसे कि यहाँ पर ये बताया मैंने, ये चेंज चाहे कितनी भी लंबी हो यहाँ पर हमें उसे कुछ देखना नहीं है. हमारी प्रोडक्ट जो होगी वो क्या होगी, आपका जो कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन है वो कार्बन के साथ में आपको हेलोजन को जोड़ना है. बाकी का ये जो है, जैसे यहाँ से आप देख सकते हो कि CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ जो आपका है O माइनस एंड Na, और ये जो आपका बचा हुआ है उसके साथ में आपने CHX3 जोड़ दिया है. तो ये बात यहाँ ध्यान में रखोगे कि यहाँ सिर्फ रिएक्शन होगा
कार्बोनिल कार्बन के बाजू में जुड़ा हुआ मिथाइल के साथ में ही, बाकी की चेन को हमें हाथ नहीं लगाना है। सो आई थिंक ये शॉर्टकट और ये टिप्स जो मैंने आपको दिया वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। सो यू विल आइडेंटिफाई दिस वेरी इजीली। और इसी तरह से हमें अगर जो एग्जाम के अंदर जो लैब के अंदर हमें दिया है कि उसमें कीटोन है कि नहीं, और कीटोन के साथ में जो है उसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, वो आइडेंटिफाई करना है। तो हमें ये देखना होता है कि यहाँ ये जो फॉर्म होता है हमारा, वो येलो बीपीटी देता है, ये हमें येलो बीपीटी देता है, क्योंकि हमारे पास में यही होता है। लैब के अंदर हम कुछ नेकेड आई से देख सकते हैं क्या चेंजेस हुआ, उसके ऊपर से तो हम रिजल्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट में, वो आइडेंटिफाई करने के लिए, वो प्रिपेयर करने के लिए हमें यही देखना है कि यहाँ जो हमें ये सोडियम इथेनॉइड मिला है उसका येलो पीपीटी के साथ में यहाँ हमें ये जो हमारा हेलोफॉर्म मिलेगा या आयोडोफॉर्म मिलेगा वो येलो पीपीटी देता है। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि गिवन जो कंपाउंड है उसमें कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट टू में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट होप सो आज का जो वीडियो था वो बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ कीटोन का ऑक्सीडेशन ही पढ़ा है। और इसमें जो दोनों टेस्ट मैंने आपको बताई वो दोनों टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, और इससे हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट में जो है हम वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर होगा अल्फा हाइड्रोजन का रिएक्शन, जिसके अंदर हमें लेना है अल्डोल एंड क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। स्टूडेंट होप सो you are enjoying to watch the videos, and yes student, just write down your comment on my comment box. Thank you student.